Jai Hind students, today we will discuss about chapter number 12 in our EVIS book, that is Going Places. We are already done with the poem along with the activity, that is Go, Go, Go. So students, we have done the introduction of this chapter as well. We have already discussed different types of transport we use for going different places. You must go different kinds of places. You visit different parks, you regularly visit your school, you regularly visit different activity places. So, for visiting these places, you must have used different kinds of transport. Some of you are coming with the bus, some of you are coming with the cycle, some of you coming with their parents. So, they are using different kinds of road transport. Some of us also visiting in our vacations in different places. So we have used plane or the train for the ride. So there are different kinds of transport we use to visit different places. Moving ahead in the chapter, we will discuss at first means of transport. So students, people travel from one place to another for many reasons. They may travel alone or with friends and family members. The main reason for people to travel are routine activity like going to school, college or office. So students, as it is written in the chapter is that हम लोग डिफरेंट रीजंस की वजह से अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हैं, चाहे हम अकेले ट्रैवल करें या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं. बट जो मेन रीजंस होते हैं हमारे ट्रैवल करने के, वो आम तौर पर जैसे आप लोग स्कूल आते हो या फिर पापा ऑफिस जाते होंगे, है ना. देर आर डिफरेंट रीजंस फॉर द सेक ऑफ विच वी ट्रैवल. The next point is going out for social activities like festivals, weddings, birthday parties, family functions, etc. अभी रिसेंट में एनुअल फंक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग छुट्टियों पे थे because of the family events they are having in their families or the social gatherings they are having in their family functions. So, going to markets, malls for shopping. आप इसलिए भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि कभी कभी हम मार्केट जाना होता है ना, जब स्कूल में कुछ एक्टिविटी होती है तो मम्मा को कहते हैं ना, मम्मा ये चाहिए या पापा ये चाहिए, तो पापा लोग मम्मा क्या करते हैं, दे विजिट टू डिफरेंट मार्केट्स, मॉल्स एंड फॉर द सेक ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना. रिक्रिएशनल आउटिंग लाइक पिकनिक्स, मूवीज, टूर्स. अभी जैसे स्कूल से टूर जाता है या पिकनिक जाता है या फिर हम लोग मूवी प्लान करते हैं फैमिली के साथ, तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल आउटिंग, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक पिलग्रिमेज टू होली प्लेस. घर में दादी बाबा लोग या बड़े लोग तीर्थ यात्रा पे जाते होंगे ना, या हम ही लोग किसी होली प्लेस पर विज़िट करते हैं जैसे मंदिर में, या छुट्टियों में हमने यहाँ जाने को प्लान कर लिया, होली प्लेस है हमारा. सो देर आर डिफरेंट kinds of activities we do, and for that we need to travel. The next one we have, going from one place to another was not easy for an early man. He used animals to pull carts and sledges. He also used boats, rafts to cross river. All these took a very long time and traveling became very tiring. Things changed with the invention of the wheel. Today, we have a large variety of vehicles to go from one place to another. अभी तो हम लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना, जैसे हम चाहे तो साइकिल से भी स्कूल आ सकते हैं, बस से भी स्कूल आ सकते हैं, कार से भी स्कूल आ सकते हैं. सो देर आर वेरियस व्हीकल्स वी कैन यूज़ टू कम टू स्कूल और एनी अदर प्लेस. कहीं भी जाने के लिए, कहीं दूर जाना है तो हम प्लेन से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर कार से ही अपनी जा सकते हैं, या वी कैन ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट
जैसे बसेस हो गई, या जो अगर छोटा डिस्टेंस तय करना है हमें, सो वी कैन यूज़ ऑटो रिक्शाज एज वेल, है ना। सो ऐसे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हो गए हैं। लेकिन पहले पता है, पहले इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। पहले वी जस्ट नीड टू गो विद द हेल्प ऑफ एनिमल। देखा है ना, राजा लोग घोड़े पे चलते थे, या फिर आगे बुल बांध देते थे, या एलिफेंट बांध के चलाते थे, है ना। सो वी टेक हेल्प ऑफ एनिमल्स, जिसकी वजह से एनिमल्स को भी दर्द होता था, क्योंकि इतना वेट लेकर वो खींचते थे, है ना। सो पहले के समय पे यानी अर्ली मैन कार्ट स्लेजेस खींचने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे। और अभी तो पानी पे कितना इजी हो गया ना, वी कैन यूज़ मोटर बोट्स टू क्रॉस द रिवर। बट पहले हमें बोट से जाना पड़ता था, जिसे हाथ से चलाना होता है। स्टिक आती है ना, वो स्टिक आगे से फ्लैट होती है, सो दैट स्टिक विल बी यूज्ड फॉर राफ्टिंग या बोट को क्रॉस कराने के लिए। तो इस वजह से ना बहुत थक जाते थे सब लोग, क्योंकि न सिर्फ एनिमल्स की बल्कि सेल्फ उनको इतना हार्ड पड़ता था चीज़ को आगे बढ़ाना, कि वो बॉडी बहुत टायरिंग प्रोसेस होता था। बट थिंग्स चेंज विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, चीज़ें अपने आप बदल गई। टुडे वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज हमारे पास ढेर सारी वैरायटी है व्हीकल्स की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। All the vehicles by which people and goods are taken from one place to another are known as means of transport. तो ये जो सारे व्हीकल्स बताए ना, स्कूल आने के लिए या डिफरेंट प्लेसेस पे जाने के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे आपकी बसेस, कार, या फिर प्लेन, ट्रेन, या और सारे व्हीकल्स हो गए, वो आप लोग मेंशन करना अभी, ठीक है। कौन कौन से व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारे व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं हम लोग? मेरे साथ बोलिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। The kind of transport we choose depends upon the distance to be traveled and the time needed to travel. So, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? इतनी सारी वैरायटी है, पर हम कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज़ करना है, वही ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करते हैं जितना डिस्टेंस है प्लस कैसे हमें कितना टाइम चाहिए हमें ट्रैवल करने के लिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपको अपनी नानी के यहाँ जाना है, या फिर कोई अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, ठीक है। अब हमने सुना है बहुत सुंदर पार्क है, बहुत प्यारा सा पार्क है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए। तो हमने क्या कहा, अपने पेरेंट्स से कहा हमें जाना है। लेकिन अब किसी के घर से वो थोड़ी ही दूर पर है, बाय वॉक करके भी जा सकता है ना, टहलते टहलते पहुँच गए। बट आपको अकेले नहीं जाना, आपको अपने फ्रेंड को भी बुलाना है। लेकिन आपका फ्रेंड पता है कहाँ रहता है? वो अलग सिटी में रहता है, दूसरे शहर में। तो आप तो टहलते टहलते चले जाओगे, लेकिन आपके फ्रेंड को आने के लिए तो शहर से आना पड़ेगा ना। अब फ्रेंड की फैमिली क्या सोचेगी कि हमें अगर ले जाना है, तो अगर 2 दिन में पहुंचना है हमें, हमारे पास वी हैव इनफ टाइम, तो हम आराम से किसी भी गाड़ी से जा सकते हैं। वी कैन यूज़ आवर कार, या फिर हम ट्रेन से जा सकते हैं ना। लेकिन अगर तुरंत आना है, मतलब एक ही दिन में आना है, तो और फ्रेंड का घर बहुत दूर है, तब आप लोग क्या करेंगे? फ्रेंड के घर वाले दे कैन यूज़ प्लेन, है ना, तो वो प्लेन से आएंगे। तो बेटा, अगर आपके पास कम टाइम है तो हम ऐसा व्हीकल यूज़ करते हैं जो हमें जल्दी से पहुंचा दे। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम आराम से डिसाइड करते हैं व्हाट वी कैन गो फॉर, है ना। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम कि काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब किस तरह के व्हीकल को हम यूज़ करें कि हमारा टाइम भी ज़्यादा बचे और हम आराम से ट्रैवल कर सकें। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। अभी देखो नीचे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दिए हुए ना, एलिफेंट, हॉर्स, म्यूल, कैमल, याक।
ये सारे एनिमल्स पहले के समय में जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, तब ये सारे एनिमल्स यूज़ होते थे फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग। और लंबी लंबी डिस्टेंसेस को एनिमल्स की हेल्प से लोग कवर करते थे। काफ़ी काफ़ी टाइम लग जाता था, दो दो तीन तीन दिन वो लोग चलते ही रहते थे। खाना वगैरह सब साथ में लेकर चलते थे ताकि किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि एनिमल का भी फूड आइटम रखना पड़ता था, क्योंकि जब वो खाएगा तभी ना चलेगा इतना वेट लेकर। मूविंग अहेड, देखो बेटा, हमने अभी बात की डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, है ना, कि हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं व्हील के इन्वेंशन के बाद। तो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट हमेशा तीन इम्पॉर्टेंट मोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। कितने इम्पॉर्टेंट मोड्स में? थ्री इम्पॉर्टेंट मोड्स। नंबर वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर टू इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नंबर थ्री इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में आप किसे किसे रख सकते हो खुद से, अभी आप चार्ट बनाइए। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम कार रख सकते हैं, वेरी गुड। हम लोग बसेस रख सकते हैं, बाइक, साइकिल, दे ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स। बट इन वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या हम ट्रेन को वाटर ट्रांसपोर्ट में रख सकते हैं? नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे अलग होंगे लैंड ट्रांसपोर्ट से। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे कौन कौन से हैं? बोट आपके, स्टीमर्स हो गए, है ना। ऐसे करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट वी पुट इन द एयर ट्रांसपोर्ट, क्या सबमरीन को आप एयर ट्रांसपोर्ट पे रख सकते हो? नहीं रख सकते, बिकॉज वो अंडर वाटर चलती है, सो इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट पे क्या आएगा हमारा? प्लेन, वेरी गुड, हेलीकॉप्टर, आपके जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज देम एज अ एयर ट्रांसपोर्ट। Sorry for the disturbance. Next we have, so these are the modes of different modes of transport we use to travel different places. Now we will discuss Knowledgepedia. You all know the fastest train of the world is Maglev train of Shanghai, which runs at a speed of 581 km per hour. तो मैगलेव ट्रेन हमारी जो शंघाई यानी कि चाइना में है, ये ट्रेन 581 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। हम लोग मुश्किल से अगर बहुत थक गए, बहुत कोई ज़िद करे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल पाएंगे गड्ढे में सो के। क्यों? क्योंकि इतना एनर्जी नहीं फील होता ना, जब टीचर्स डांटते हैं तब चलना होता है। सो दिस ट्रेन रन सो फास्ट। Next one. In the next page, at first we will discuss land transport. So students, as you see, we have discussed different land transport, है ना। स्कूल आने के लिए आप लोग कितने सारे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो ना, बस, कार, बाइक, ऑटो रिक्शा एज वेल, या वैन, है ना, कितने सारे होते हैं आपके। So all vehicles that move on land like carts, rickshaw, cars, buses, trucks, trains, scooters, motorcycles, etc. are means of land transport. है ना? Land transport is the most common way of traveling in India. It is less expensive and better connected throughout the country. India has one of the largest railway networks in the world. बेटा पता है आपको, इंडिया के पास वर्ल्ड में जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, मतलब बाय रोड हर सिटी कनेक्टेड है, इंडिया उनमें से एक है। यानी कि आप बाय रोड हर सिटी, यानी बाय ट्रेन आप इंडिया के किसी भी शहर में जा सकते हो, क्योंकि हर शहर इंडिया का ट्रेन से कनेक्टेड है। नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ, सॉरी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सारे डायरेक्शंस चार, वी हैव डिस्कस द ऑल फोर डायरेक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, so all four directions are connected with each other, and we use land transport to move.
So throughout the country land transport is connected. ठीक है, because it is less expensive. एक तो ये महंगा कम पड़ता है, प्लस अभी बताया ना इन पूरा इंडिया लैंड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है. नाउ इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा हर जगह अवेलेबल रहता है. और सबसे बड़ी चीज़ अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल रहेंगे चाहे जहाँ भी आप चले जाओ. Okay, so we will do the test your knowledge. Write the names of vehicles in order to their speed from the slowest to the fastest. It is already written in the book, but you need to do it by your own. ठीक है, then आप मैच करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया है. Okay, we will do it later. Don't worry. I will give you the time for this. The next one we have water transport. So students, as we have discussed about the land transport, water transport is vehicles that sail on the surface or below the water are called water transport. यानी कि वो व्हीकल्स जो पानी के ऊपर या पानी के अंदर चलते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट्स, ships, steamers, submarines and hovercrafts are means of water transport. तो इतने सारे टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, चेक कर लीजिए आप लोग. इतनी सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट ही नहीं हमारे पास इमेंस अवेलेबल है. वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. सो large quantities of goods can be transported by means of water transport. It is the cheapest but the slowest means of transport. यानी कि हमारे पास इतने सारे वाटर ट्रांसपोर्ट तो हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, स्टीमर्स हैं, सबमरीन्स हैं, होवरक्राफ्ट्स हैं, बट बेटा ये चीपेस्ट तो होते हैं पर बहुत धीरे होते हैं. अब मान लो आप सी से कुछ गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और तूफ़ान आ गया, सो यू नीड टू स्टॉप और मूव बैक ना. तो इस वजह से ये स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहे जाते हैं. ठीक है, कि इट इज़ स्टिल डेवलपिंग वी कैन से, है ना. नेक्स्ट वन वी हैव शिप्स लोड्स एंड अनलोड पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम प्लेसेस called ports. They are located near water bodies. When ships are not being used, they are kept at places called harbors. तो बेटा जब हम शिप को जहाँ पर लोड और अनलोड करते हैं ना, बड़ी बड़ी शिप्स देखी होगी आपने टीवी या कार्टून्स में अक्सर देखा होगा. बड़ी बड़ी शिप्स रहती है, उसमें से सामान ऐसे अचानक से निकलता है और कार्टून कैरेक्टर कूद के बाहर आ जाता है. यू मस्ट हैव सीन दोज कार्टून्स. तो बेटा ये शिप्स जहाँ पर इन शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होता है बेटा जब जहाँ पर सामान रखा और उतारा जाता है ना, इन जगहों को हम कहते हैं पोर्ट्स. ये पोर्ट्स हमेशा वाटर बॉडीज़ यानी कि आपकी जो सी का या ओशंस का किनारा होता है ना, वहाँ पर बने होते हैं. इन पोर्ट्स पर ही हम सामान को रखते और उतारते हैं. इन पोर्ट्स से ही सामान रखे जाते हैं शिप में और इन्हीं पोर्ट्स पर उतारे जाते हैं. ठीक है, और जब शिप यूज़ नहीं हो रही होती है ना, तो शिप को हार्बर पे खड़ा करते हैं. हार्बर जैसे आपकी पार्किंग होती है ना गाड़ियों के लिए, कार पार्किंग या डिफरेंट व्हीकल्स पार्किंग, वैसे शिप की पार्किंग को आप हार्बर कह सकते हो. ठीक है, सो this is for today's class. We have discussed land transport, different kinds of land transport, water transport, different kinds of water transport, and the places where we load and unload passengers or goods. उसके पहले हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, different means of transport we use to travel. So this is for today's class. Okay, students, if you have missed any of the information or any kind of point you are still unaware of or still feeling that you have not understood it properly, you can write it in the group chat. Also, you can mention that point along with the line number, and
You can also pause the video to get if you have missed any of the information, and take care and keep reading. So now we will do the activity in the group. Thank you so much.